वेल विजन कॉम्पिटिटिव एकेडमी के यूट्यूब चैनल में मैं संजय सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको पैडागोजी के वो इंफॉर्मेशंस के बारे में बताना चाहता हूं जो यूजुअली क्लासरूम के अंतर्गत डिस्कस नहीं किए जाते हैं। वो किसी कारण से वो चीजें छूट जाती है। व्हेन वी जस्ट टीच some students in the classroom, तो हम वो इंफॉर्मेशन रिलीज नहीं कर पाते बिकॉज वी ऑलवेज फोकस ऑन द पर्टिकुलर चैप्टर। स्किल्स चल रहा है तो स्किल्स से फोकस कर रहे हैं, मेथड्स एंड अप्रोचेस पे पढ़ रहे हैं तो उस पर फोकस कर रहे हैं। इसी दौरान कुछ इंफॉर्मेशन ऐसे हैं जो रिलीज नहीं हो पाती। I would like to release those information today in front of you, and these are very important. So first of all, I'll go to introduction of the pedagogy. What do you mean by pedagogy? Pedagogy, what can be called? You can call it art of teaching. You can call it, and you can call it method of teaching also. Method of teaching also you can call it. You can also call science of teaching. And nature of teaching also you can call it. These are the renames of pedagogy. Pedagogy can be defined as art of teaching, method of teaching, science of teaching, and nature of teaching. And the most important, which cannot be said about the pedagogy, is craft of teaching. You can never say that pedagogy is a craft of teaching. So that's why these are four options you can call pedagogy definition: art of teaching, method of teaching, science of teaching, nature of teaching. But we should not call pedagogy as a craft of teaching. We should not call it craft. This question was asked in seated previous examination. So please take care in your account that pedagogy can be defined as an art of teaching, method of teaching, science of teaching, nature of teaching, but it should not be defined as a craft of teaching. This is very important information. Next, some information about the phonetic. I'm not talking about, I'm not teaching, but a very good information I can pass. So many questions have been asked. Phonetics means what? Phonetics means where we talk about vowels, consonant. When we talk about this, that is called phonetics. Study of sound is called phonetics. ठीक है ना? Now the phonetics in English we have 44. The एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, व्हाट इज लैंग्वेज? लैंग्वेज इज अ सिंबॉलिक। लैंग्वेज क्या है? एक भाषा है जो एक सिंबल को संबोधित करता है। आप कहीं भी जाएंगे उन भाषाओं में जो सिंबल है, क ख ग घ ड़ च छ ज ए बी सी डी, क्या है? दीज ऑल आर सिंबल्स। तो सिंबल्स होते हैं। तो फोनेटिक्स में जो साउंड के लिए है, अंग्रेजी के 26 अक्षरों को दर्शाने के लिए साउंड में 44 तरह के ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। लिखित रूप में 26 है। जब हम बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन या हम जब स्पीक करते हैं तो उसमें 44 का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे इनको भी दो भागों में डिवाइड किया जाता है, वॉल्स और कॉन्सोनेंट। देखिए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट राइटिंग स्किल। हम यहां पर राइटिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहां पर साउंड की बात कर रहे हैं। इसलिए यदि साउंड में वॉल्स की संख्या पूछी जाती है तो साउंड में वॉल्स की संख्या 20 होती है, वहीं पर कॉन्सोनेंट की संख्या वी हैव 24। सो इट इज, अब वॉल्स की बात करेंगे, वो 5 जो होते हैं वो इन राइटिंग होते हैं, ए ई आई ओ यू। लेकिन जब ये आपसे इन द रेस्पेक्ट ऑफ sound, in the respect of pronunciation, if you are asked that how many vowels are in English phonetics, then we can say we have a 20 vowels, and how many consonants? We have a 24 consonants. Take care of it. Now this 20 vowels are divided into two parts. The first one is called monophthong and the second one is called diphthong. Now the number of the monophthong is 12 and the diphthong number is 8. Now the question arises, what is the definition of monophthong and what is the definition of diphthong? देखिए, I can inform you in a very small pattern. What do you mean by vowels? जो हम हिंदी में ओ, आ, ई, उ इनका प्रयोग करते हैं, तो this is called वॉल्स। वॉल्स इन साउंड। तो मोनोथॉन्ग का मतलब होता है, इसका मतलब होता है सिंगल वॉल साउंड, यानी जहां पर एक ही वॉल साउंड आ रहा है तो वो 12 होते हैं। जब ये डबल हो जाते हैं, जब दो दो वॉबल साउंड एक साथ आते हैं, डबल वॉल साउंड इज कॉल्ड डिप्थोंग। तो
तो सिंगल, अब आप कहेंगे सर इस कंफ्यूजन को थोड़ा दूर करना चाहेंगे, मैं यहां पर देखिए मैं आपको प्रोड्यूस करके दिखाता हूं। मैं C फॉर कॉन्सोनेंट, V फॉर वॉबल, C फॉर कॉन्सोनेंट, V फॉर वॉबल, C फॉर कॉन्सोनेंट, V फॉर कॉन्सोनेंट। आप देखिए मैंने एक पैटर्न बनाया, कॉन्सोनेंट वॉबल, कॉन्सोनेंट वॉबल, कॉन्सोनेंट वॉबल, कॉन्सोनेंट। आप इस प्रक्रिया में, इस फॉर्म में देखेंगे, यू विल नॉट फाइंड एट एनी प्लेस द वॉल्स हैव बीन रिपीटेड। कहीं पर भी दो वॉल्स एक साथ नहीं लिखे गए। यदि किसी का उच्चारण इस तर्ज पर है तो वी कैन कॉल देम मोनोथोंग। लेकिन इफ साउंड ऑफ वॉबल इज रिपीटेड समवेयर, यदि कहीं पर दो वॉबल साउंड एक साथ रिपीट कर जाते हैं तो दे आर कॉल्ड डिफ्थोंग। तो ये देखिए, अब नाउ वी कैन गेट द एग्जांपल। सपोज इफ आई से पेन, अब देखिए पेन में की बात करते हैं तो पेन में पहले कॉन्सोनेंट आया, फिर उसके ऊपर वॉबल साउंड आया, फिर से कॉन्सोनेंट प्रोड्यूस हुआ है, तो पेन शुड बी कंसीडर्ड एज अ मोनोथोंग। हम इसको मोनोथोंग में रखेंगे। बट इफ आई से चेयर, मैं आपको बोलूं देयर, तो देखिए चेयर, तो इसमें ए आने के कारण ये डिप्थोंग में काउंट किया जाएगा। तो ये भी डिप्थोंग है। देयर, केयर, नाउ, हाउ, वाउ, ये सब क्या है? दीज ऑल। तो डिप्थोंग और मोनोथोंग का ये इसके ऊपर सवाल पूछे जा चुके हैं, तो याद रखेंगे। डिप्थोंग को ग्लाइड वॉल्स के नाम से भी जानते हैं, ग्लाइड वॉल्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, ग्लाइड वॉल्स। नंबर याद रखेंगे, ठीक है। मोनोथोंग को भी दो भागों में बांटा जाता है, एक को कहा जाता है लॉन्ग वॉवल और दूसरे को कहा जाता है शॉर्ट वॉवल। लॉन्ग वॉवल की संख्या होती है 5 और शॉर्ट वॉवल की संख्या होती है 7। अब ये लॉन्ग और शॉर्ट का क्या तात्पर्य है? लॉन्ग और शॉर्ट का मतलब जैसे छोटा ई है तो वो शॉर्ट है, बड़ा ई है तो वो लॉन्ग है। जैसे मैं एग्जांपल यहां पर देता हूं मैं आपको, यदि मैंने आपसे बोला कि स्लीप और मैंने कहा स्लिप, तो इन दोनों में क्या है? स्लीप में लॉन्ग वॉवल्स का काउंट किया गया है तो इसलिए लॉन्ग कहलाएगा, और स्लिप जो है वो शॉर्ट होने के कारण इसको हम लोग शॉर्ट वॉवल के काउंट में रखेंगे। ये इंफॉर्मेशन आपको याद रखना होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये 24 जो है, मैं आपको आखिरी समय में मैं बता दूंगा कि ये जो 24 कॉन्सोनेंट्स हैं इनको भी दो भागों में बांट दिया जाता है। कुछ होते हैं वॉइस्ड और कुछ होते हैं वॉइसलेस। कुछ होते हैं वॉइस्ड, कुछ होते हैं वॉइसलेस। तो जो वॉइस्ड की संख्या है वो है 15 और वॉइसलेस की संख्या हो गई कितनी? 15 5 ये हो जाएगा 9, तो 9 हो जाता है आपका वॉइसलेस। तो ये सब इंफॉर्मेशन है कि क्या है मोनोथोंग, क्या है डिप्थोंग, क्या है लॉन्ग वॉवल की संख्या कितनी है, शॉर्ट वॉवल की संख्या कितनी है, वॉइस्ड कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी है, वॉइसलेस कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी है। ये समझने के लिए हमें, जब हम फोनेटिक्स के चैप्टर पे जाएंगे तो हम ये पता कर पाएंगे कि कैसे वो कॉन्सोनेंट वॉइस्ड है, कैसे वो कॉन्सोनेंट वॉइसलेस है, ठीक है ना। ये सारे इंफॉर्मेशन ऐसे हैं जो कभी कभी हम क्लास के अंतर्गत नहीं डिस्कस कर पाते हैं, ठीक है ना। सो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस। और यदि आपको ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको फ्यूचर वीडियोस नोटिफिकेशन मिलता रहे।